Hello, welcome to the lecture UGC NET Exam Prep. In this lecture, we are going to cover basis of marketing segmentation. So this is part 1 of the lecture. Okay, so what is the basis of market segmentation? Right. So what is geographical segmentation? क्या होता है? Geographical segmentation is dividing the market into locations, like it will be divided on the basis of country. Regions अलग होगा, cities अलग होगा, right? In that manner there will be a geographical distribution. और हर एक country का living standard, pattern of living will differ from the other country with the other cities, right? For example, marketing strategies may differ from the urban area to the rural area or between the different regions. So first under this is major geographical factors, including under this is cultural heritage, urbanization, population density and climate. So we are going to look into this one by one. First is cultural heritage. इसका मतलब क्या होता है? Different regions have their unique ट्रेडिशन, लिविंग स्टैंडर्ड अलग होगा, कल्चरल बैकग्राउंड एकदम डिफर करेगा, लैंग्वेज स्पोकन विल बी डिफरेंट, कल्चरल प्रैक्टिसेस विच दे आर अडॉप्टिंग दैट विल बी डिफरेंट. सो इन इंडिया बेसिकली विमेन वेयर सूट और साड़ी, और यही चीज़ हम लोग वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे तो वहाँ ज़्यादातर जीन्स पहनते हैं लोग. सो देयर इज़ अ कल्चरल डिफरेंस. वैसे ही मैकडोनल्ड्स अपने मेन्यू में कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ कल्चरल प्रेफरेंसेस. सो इन इंडिया मैकडोनल्ड्स ऑफर्स मैक आलू टिक्की बर्गर. ये किन लोगों के ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा? दोज आर वेजिटेरियन प्रेफरेंसेस. यही मैकडोनल्ड्स क्या करेंगे जापान में, right? In Japan, they'll be selling something different like teriyaki burger to match the cultural heritage, the local taste of those people. So product varies according to the cultural heritage, according to the culture, according to the perspectives of the people living over that area, over that region. Next point is urbanization. So a place is being divided into urban area, into remote area, into suburban areas, into rural areas, right? So they have different lifestyle, education लेवल अलग होते हैं. अर्बन एरियाज़ की पीपल ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं देन दी रूरल एरियाज़ पीपल. इनकम लेवल वेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग वेरी करता है क्योंकि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा सीमेंटिक रोड्स वगैरह होते हैं एंड इन दी अर्बन एरियाज मोर ऑफ पक्का रोड्स आर बीइंग फाउंड. सो मार्केटिंग अप्रोचेस, marketing strategies are being adopted differently in different locations. An example of this would be that in the urban areas more of vehicles like cars, AC, well furnished furniture, electric appliances, those are being used, those are being consumed by the consumers. वही जगह में अगर रूरल एरियाज़ में चले जाएंगे तो वहाँ स्टोव हो गए, स्टोव्स यूज़ होते हैं, वुडन व्हीकल्स यूज़ होते हैं, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द population density, or we can say according to the place, according to the urban and rural sectors, the consumers are being divided and their preferences are being decided. And another example of this would be of telecommunication companies like of Jio and Airtel. वो लोग क्या करते हैं? वो लोग हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं इन द अर्बन एरियाज because the urban people are having more income, so they can afford the high speed of internet because the charges are more.
और यही चीज़ रूरल एरिया में अगर जाएंगे तो सो वहाँ पर क्या होगा, अफोर्डेबल डेटा प्लान्स विल बी अवेलेबल इन दोज एरियाज दैट will be within the range of the rural people, right? Next point is population density. So population density is the area with high population density. जैसे कि in metro areas urban population density is very high, or in lower population density areas like in villages they demand different product and services. So population density in the rural areas are low and in the urban areas it is high. So अब यहाँ पर ही कैसे मार्केटिंग सेगमेंटेशन कर सकते हैं मार्केटियर्स, like in the urban areas more of Zomato and Swiggy is popular. क्यों? Because here there is densely populated area where people over here prefer quick, जल्दी जल्दी खाना मिल सके उन लोगों को, because everyone is mostly going to the jobs or they are going out of their house for working. So उनका इतना टाइट और बिजी लाइफस्टाइल, बिजी लाइफ शेड्यूल रहता है कि वो लोग प्रेफर करते हैं कि जल्दी क्विक फूड डिलीवरी सर्विस हो जाए हमें, एंड दे कैन लीव फॉर द जॉब और फॉर द रिस्पेक्टिव वर्क. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस क्या होता है, इन द रूरल एरियाज ज़्यादातर क्या होते हैं, ट्रेडिशनल किराना शॉप्स लाइक द ग्रोसरी शॉप्स और लोकल वेंडर्स, ये सब ज़्यादा सिचुएटेड होते हैं इन द रूरल एरियाज, इन द रिमोट एरियाज, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, होम डिलीवरी सर्विसेज आर वेरी मच लिमिटेड. पीपल यूजुअली स्टे बैक एट देयर होम, they have their own small business or they might have their farms to run on. उन लोगों का खुद का फार्म्स होते हैं. सो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि खुद से जा कर के प्रोडक्ट परचेज कर सके. इसीलिए इन द रूरल एरियाज किराना शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स और लोकल वेंडर्स आर मोर पॉपुलर. लास्ट वी हैव द क्लाइमेट. अब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग marketing strategies and product given out to the consumers are different, क्योंकि it affects, because जैसे कि इन द हिली स्टेशंस क्या होता है, ज़्यादा विलन क्लोथ्स सेल आउट होंगे, राइट, हीटर्स सेल आउट होंगे. और यही थोड़ा नॉर्दर्न एरियाज में चले जाए, जैसे दिल्ली इन इंडिया, द लोकेशन लाइक दिल्ली, हरियाणा, ये सब जगह क्वाइट वार्मर रीजन्स हो जाते हैं. तो यहाँ क्या होगा, लाइट वेट और मोर ब्रीदेबल वेयर्स और स्पोर्ट्स वेयर इज बीइंग टेकन अप बाय द कंज्यूमर्स, दैट बिकम्स फेवरेबल. इसलिए नाइकी क्या करते हैं, नाइकी एंड आदिदास मेक्स warm insulated clothing in the colder regions like in the Canada regions, क्योंकि कनाडा में बहुत ठंडी पड़ती है, तो वहाँ ज़्यादा इंसुलेटेड स्पोर्ट्स वेयर या फिर क्लोथ्स ज़रूरत पड़ते हैं कनाडा के पीपल को. और यही अगर इंडिया में नाइकी और आदिदास बनाए प्रोडक्ट्स, दे प्रमोट व्हाट, लाइट वेट, कॉटन, ब्रीदेबल स्पोर्ट्स वेयर. So this is all about the basis of market segmentation, and we have covered the geographical segmentation. Right, now we are going to cover the next slide, that is demographic segmentation. अब what is the meaning of demographic segmentation? इसका मतलब है dividing the customers into different groups based upon the age. क्या इनकम लेवल है कंज्यूमर्स का, एजुकेशन कितना पढ़ा लिखा है कंज्यूमर्स, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट द एज. कंज्यूमर्स अलग अलग एज के होते हैं, और इसी एज की वजह से प्रोडक्ट्स दे टेक प्रेफरेंसेस ऑफ द प्रोडक्ट, द नीड ऑफ दोज कंज्यूमर्स, बाइंग पैटर्न, बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स वेरी. क्योंकि एक छोटा बच्चा क्या हो जाएगा, just they want the toys or they want sweets, और यही कोई adult या फिर teenager, they are more towards getting mobile phones, they are more tech enthusiasts. So consumers
आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एज ग्रुप, इसलिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ता है डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए. लाइकवाइज नेटफ्लिक्स क्या करते हैं, वो ऑफर करते हैं किड्स फ्रेंडली कंटेंट फॉर दी चिल्ड्रन के लिए. चिल्ड्रन एक अलग सेगमेंट हो गया. सो उन लोगों के लिए क्या होगा, किड्स फ्रेंडली कार्टून्स और एपिसोड्स विल बी डिजाइंड बाय नेटफ्लिक्स. फिर एक्शन पैक्ड सीरीज इज फॉर द टीनेजर्स एक अलग ही सेगमेंट हो गए. सो उन लोगों के लिए एक्शन पैक्ड sequels, action-packed series will be designed, and classic movies is for the older people, older generation of the segment of the consumers. Next we have the income. अब income के basis पे भी consumers are being divided. वही जिसका purchasing power बहुत high हो जाएगा वो higher income group of people में आ जाएंगे, and they are going to afford more of luxury goods, more of cars, exclusive watches. और वही mid level of consumers, they are more towards affordability goods. They will have a bend towards budget friendly brands like Titan and Maruti Suzuki car because that is much more affordable. So जो मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ पीपल है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बहुत महंगा वॉचेस नहीं लेने जाएंगे या फिर मर्सिडीज बेंज नहीं लेने जाएंगे. वो अपने इनकम लेवल को डिसाइड करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू स्पेंड अपॉन देयर मनी, राइट. लास्ट इज द एजुकेशन. सो एजुकेशन बहुत इम्पैक्ट करता है अपॉन द करियर चॉइसेस वी आर टेकिंग, अपॉन द परचेजिंग डिसीजंस, एंड दैट इवन अफेक्ट्स दी प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस. क्या प्रोडक्ट्स हम लेने वाले हैं इन फ्यूचर में एजुकेशन लेवल पे डिसाइड होगा, क्योंकि एजुकेशन लेवल एक छोटे बच्चे का डिफरेंट होता है. देन कम्स अ कॉलेज पीपल, देन कम्स दी प्रोफेशनल पीपल. सो एजुकेशन लेवल्स डिफर होता है. अब छोटे बच्चे क्या देखना चाहेंगे, कार्टून्स वगैरह देखना चाहेंगे, राइट. कॉलेज पीपल they will more be into action, and जो ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल है वो लोग कॉन्सर्ट में या फिर लाइट म्यूज़िक, शेक्सपियर ड्रामा, वो सब ज़्यादा पसंद करेंगे. And another example of this would be like if a person is studying in IIM or in the IITs. So इन लोगों के लिए क्या हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और लिंक्डइन लर्निंग मार्केटिंग कंटेंट ये सब डिज़ाइन किया जाता है बिकॉज दे आर हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड दे आर लुकिंग फॉर करियर ग्रोथ, करियर एडवांसमेंट उन लोगों को चाहिए. तो ये सब डिज़ाइन किए जाते हैं हार्वर्ड रिव्यू प्रोफेशनल्स के द्वारा एंड थ्रू द लिंक्डइन लर्निंग प्रोग्राम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. यही जब इनकम लेवल थोड़ा सा कम हो कंज्यूमर्स का, देन they are going to look into courses like Udemy और Coursera. ये भी अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हु आर सीकिंग ऑनलाइन एजुकेशन बट उसका बजट थोड़ा सा कम होगा. एंड फॉर इवन दो सॉर्ट ऑफ पीपल हु विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ मोर लूसिड, मतलब कि मोर ईजी लैंग्वेज, थोड़ा इजी लैंग्वेज जो लोग ग्रैप्स कर पाएंगे उन लोगों के लिए ये कोर्सेरा या फिर यूडेमी के प्लेटफॉर्म्स कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं फॉर देयर अपस्किलमेंट, फॉर देयर करियर ग्रोथ एंड फॉर देयर करियर डेवलपमेंट, राइट. सो दिस वॉज द टू मेजर बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. देयर आर मोर टू सेगमेंटेशन जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इन आर next lecture. So this was all about today's lecture. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell icon, and if you have any doubts kindly comment that. Thank you.